इलेक्ट्रिसिटी में what are the basic things that you need to? The first one is, what is charge? What is current? What is current? Rate of flow of charge. First thing. Second is, what is the SI unit of current? Ampere. SI unit of current is ampere, denoted by capital A. Second is potential difference. What is potential difference? It is the potential at 2 point. Whenever there is a difference in potential at 2 point, current flows from one point to another. ठीक है? And the unit of potential difference is volt. Potential difference is volt. What is the short form? V. Every conductor has some obstruction to the flow of current, and that is called resistance. And what is the unit of resistance? OHM. We write it like this. Ohm. Now the relation between ampere, volt and ohm is given by a law, and that is called Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law says that current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference across its end. That means I is proportional to V. When I will increase, V will increase. उल्टा बोलेंगे हम लोग. When V increases, I increases, because I is dependent on V. So V is proportional to I. अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है? एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा. तो इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल, वी से V is equal to IR, and this relation is very very important. ठीक है? Resistance of a conductor is dependent on 4 factors. What are the 4 factors? पहला है temperature. So if the temperature of a conductor increases, the resistance will increase. So T, temperature increases, resistance will increase. The second is, if the length of the conductor increases, resistance will increase. So R is proportional to L. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. Now what do you understand by area of cross section? हाँ, वो कितना, मतलब उसका थिकनेस क्या है? That is called area of cross section. अगर वो मटेरियल का जो फेस है वो स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर का एरिया निकालिएगा. अगर वो सर्कुलर फॉर्म में, इट्स इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, you use pi r square. If it's in a triangular shape, you use the area of a triangle. Depending on the shape, you use that. And the fourth is the material of the conductor. So R is proportional to the material of the conductor. Each material has certain resistance which is called resistivity. ठीक है? So R can be given as R is equal to resistivity length by area of cross section. ये हमारा बहुत ही फेमस फॉर्मूला है. That is resistivity. ठीक है? तो R is proportional to resistivity, length and area of cross section. What is the unit of resistivity? Ohm meter. ठीक है? अच्छा, what is the inverse of resistivity? Conductivity. तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा,
और जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी कम होगा. Similarly, inverse of resistance is conductance. If the conductance is more, the resistance will be less, and if the resistance is more, conductance will be less. Clear है? No problem so far. अब आते हैं connection of resistance. Now resistance are connected in two ways. One parallelly, and the second is in series. Now, when you make a connection in series, you need to remember I will be same, V will be different. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद करने. करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा, और अगर पैरेलल है तो करंट अलग अलग रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. If you look at any appliances that you have, none of the appliances have ampere rating. They have potential difference rating. So, in order for the appliance to run properly, the potential difference should be fixed. Now, based on the resistance of the appliances, it draws करंट. अगर बड़ा अप्लायंसेस है तो करंट ज़्यादा होगा, छोटा अप्लायंसेस है तो करंट कम होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 टन का एसी हुआ तो इट टेक्स अराउंड 4 to 5 एम्पियर ऑफ करंट. बट वट एवर अप्लायंसेस दैट यू आर यूजिंग एट होम, दे आर ऑल रनिंग ऑन सेम वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट. अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो अप्लायंसेस का परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा. नाउ टेक फॉर एग्जांपल यू हैव 3 अप्लायंसेस, 1 2 3. डिफरेंस क्यों आता है? सबका रेजिस्टेंस की वजह से आता है. इफ द सप्लाई इज V वोल्ट, यहां हो जाएगा वोल्टेज V1, यहां हो जाएगा वोल्टेज V2 और यहां हो जाएगा वोल्टेज V3. ठीक है? तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना. What is V? V is equal to IR. तो ये हो जाएगा IR1. आप बोलोगे सर I1 R1 क्यों नहीं? Because I said current is same. Plus IR2 plus IR3. So what you do is IR लिख करके I take common, R1 plus R2 plus R3 काट दो. R is equal to R1 plus R2 plus R3. Now this is the relation when the resistors are connected in series. अगर कभी एग्जाम में गलती से कभी आ जाए कि deduce the relation for resistance in series, what you will do, you will make a circuit, you will give them 3 resistors R1 R2 and you say let consider 3 resistors R1 R2 R3. Now the potential supplied is V. So the potential for different resistance will be V1 plus V2 plus V3. उसके बाद IR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I को काट देंगे, R का रिलेशन मिल जाएगा. नो प्रॉब्लम so far. Now what happens? तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? ये वाला ठीक ठाक चलेगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, तो तीनों अप्लायंसेस ठीक नहीं चलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल यू टेक 3 बत्ती बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दो. पहला वाला ठीक जलता है, दूसरा और तीसरा वाला एकदम थोड़ा सा, चौथा वाला तो गायब, जैसे उसको टीवी हो गया है. ठीक है? नाउ इफ आई कनेक्ट देम इन पैरेलल. अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि पैरेलल? अच्छा, आते हैं बात में. तो पैरेलल में क्या करेंगे? एक पॉइंट से एक रेजिस्टेंस निकला, इस पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस निकला और इसी पॉइंट से तीसरा रेजिस्टेंस. दिस इज भाई साहब इज R1, दिस भाई साहब इज R2, दिस भाई साहब इज R3. सब में वोल्टेज सेम है. दिस वन विल हैव I1, दिस वन विल हैव I2 एंड दिस वन विल हैव I3. अच्छा, ये बैटरी है और बैटरी के साथ स्विच दे देते हैं हम लोग. बैटरी जब बनाते हैं ना, बड़ा लाइन और छोटा लाइन,
बड़ा लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटा लाइन मतलब नेगेटिव, और जिधर बड़ा लाइन रहता है उधर ही स्विच करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कनेक्शन सीरीज में है कि पैरेलल है। सीरीज में आप देखो, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, पैरेलल में ध्यान दीजिएगा, द स्टार्टिंग पॉइंट and the ending point are same. The starting point and ending point are same, and if I am supplying V volt, each one of them will have V volt. तो ड्रॉप क्या कर रहा है? I. तो टोटल करंट सप्लाई इज I. ये विभाजित हो गया I1, I2 और I3 में। सीरीज वाला को V से स्टार्ट किए थे, इसको I से करेंगे। What is I? V by R. So this is V by R1 plus V by R2 plus V by R3. V by R is equal to V taking common 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. Happy birthday. So 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो ये भी रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, आसान है, समझ में आ जाने के बाद आसानी लगेगा, वरना फिर याद करोगे ना, अगर रट्टा मार रहे हो तुम तो क्या होगा मालूम, भूल जाओ। ठीक है, we will try to solve some problem about circuit diagrams. ठीक है, देखिए 2-4 सवाल हम करेंगे, 4-5 आप कीजिएगा, मिल बांट के काम करेंगे, काम हो जाएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको करने का मौका दिया जाएगा। देखिए ये जो है एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, फिर ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। ध्यान से देखिए, ये जो दोनों है सीरीज में है और उसका जो टोटल होगा वो पैरेलल है। तो सिंपलिसिटी पर्पस के लिए सबका डायग्राम पहले बनाइएगा, जो कि मैंडेटरी है, बनाइएगा ही बनाइएगा, और सबका नाम लिख दो, ताकि जब सोल्यूशन करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गिव देम नेम R1, R2, R3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, R डैश। पहला वाला जो निकालोगे उसका नाम रखोगे R डैश। व्हाट इज R डैश? R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम। हो गया। अब आपको क्या करना है, दिस टोटल इज कॉल्ड R डैश। आपको टोटल क्या चाहिए, R चाहिए, तो R इज इक्वल टू 1 बाई R डैश प्लस 1 बाई R3, 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6, 12 इज एलसीएम, 1 प्लस 2 दैट इज 3 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4। So R is equal to 4 ohm. Any question? ये आसान था। If you look at number 8, example number 8, उसमें क्या है, एक दिया है, यहां पे 3 पैरेलल है, तो इसको पहले निकाल लेंगे R डैश, फिर ये सीरीज में है, फिर पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल वाला को अलग अलग निकाल लेंगे। एक भाई साहब को निकालेंगे R डैश, दूसरे भाई साहब को निकाल लेंगे R डबल डैश, और उसके बाद पैरेलल सीरीज में डाल देंगे। ठीक है, अब आगे चलते, नंबर 9 देखिए, ये हम करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दिस इज लाइक अ स्क्वायर, राइट, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये जो है, ये है, ये है,
देखो माई डायग्राम इज पैथेटिक है। सो R1, R2, R3, R4। तो सबसे पहले आप निकालिए R डैश इज इक्वल टू R2, R3, R4। ठीक तो इमाम साहब, इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम। अब ये जो टोटल है इसका, इसके साथ पैरेलल है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R1, दैट इज 1/6 प्लस 1/2। So 6 is LCM, 1 plus 3, that is 4/6, that is 2/3। R is equal to, उल्टा कर देते हैं 3/2, क्या है ओम। आंसर जब लिखिएगा तो इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर दीजिएगा, 1.5 ओम। एनी क्वेश्चन? और आगे चलते हैं। नंबर 10, नंबर 10 देखिए तो हो जाना चाहिए। नंबर 10 का कैसा है इमाम, देखो भाई, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से एक ये रेजिस्टेंस निकला और ये 3 निकला, 3, तो ये तीनों सीरीज में निकाल लोगे, फिर इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट पैरेलल में निकालोगे। अब जो बचेगा ना, ये वाला और इसका टोटल प्लस ये वाला सीरीज में हो जाएगा, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक था इजी वाला। अब आते हैं परेशानी वाला, ठीक है। सो आई विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, and I would like you to pay attention। अच्छा, इतने देर में आप लोगों को एक चीज हम नहीं बताए। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद बता दें। देखिए, दिस इज द बैटरी, this is switch, this is one resistance, this is another resistance, this is one resistance, this goes that side like this। 12 volt is the supply, this is 8 ohm, this is 12 ohm, this is 6 ohm। इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर। अब ये क्या है, ये सीरीज में, और सीरीज में पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग को नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, दैट इज 1/12 प्लस 1/6, दैट इज इक्वल टू 12 LCM, 1 + 2, दैट इज 3/12, which is equal to 1/4। So R dash is equal to 4 ohm। Final resistance R will be R dash plus R1, correct? That is 4 + 8, that is 12 ohm। करंट कितना होगा, I is equal to V/R। V कितना है 12, R कितना है 12, करंट कितना है 1 एम्पियर। अब ऐसा नहीं सोचना कि 1 एम्पियर ही तो बहुत होता है 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर बहुत होता है। तो करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, अब परेशानी थोड़ी बढ़ेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 ओम एंड 12 ओम।
कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड अक्रॉस 12 ओम। एक बात बताओ, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है। तो दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 6 और 12 का? पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं आर डैश, ठीक है, लिख देंगे बोथ विल हैव सेम करंट, सॉरी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर डैश, आई कितना 1, आर कितना 4, तो 4 वोल्ट। समझ में आई बात? दोनों में 4 वोल्ट, करंट दोनों में अलग अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा बिकॉज दे आर पैरेलल है। इसीलिए पैरेलल और सीरीज जब भी करवा रहे थे हम पहला बात बोले, सबसे जरूरी बात यही है कि आपको ये याद रखना है कि अगर सीरीज में है देन द करंट विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अगर पैरेलल है करंट अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, potential if the current through 6 resistance is I1, मतलब 6 ओम वाले के थ्रू करंट जो जा रहा वो है 6 I1, ठीक है। कहां द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितना होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, इस केस में I का पहले से जानना जरूरी है, अगर V का पहले से जानना जरूरी है, अगर V नहीं दिया हुआ है तो पहले V निकालिएगा उसके बाद I निकालिएगा। तो I इज इक्वल टू V बाई आर डैश, V कितना 4, R कितना 6, दैट इज 2/3 एम्पियर। ठीक है इमाम भाई, नो प्रॉब्लम। अब आपको बताते हैं कुछ छोटी छोटी चीज, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज ईएमएफ? फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? होता क्या, बैटरी होता है ना, बैटरी कौन सा करंट सप्लाई देता है? Every battery will give you DC current. No battery will give you AC. सब DC देता है, डायरेक्ट करंट। और जब बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं ना, ये बैटरी है। If you get a battery like this, if it's an alkaline battery, ठीक है, ये शायद चार्जेबल बैटरी है। जो भी चार्जेबल बैटरी आप देखोगे इस टाइप का, दे हैव 1.2 वोल्ट। और जो ड्राई बैटरी मिलता है ना मार्केट में, जो घड़ी बड़ी में लाके लगाते हैं, फिर खराब हो जाता है, फिर फेंक देते हैं, फिर नया लाके लगाते हैं, दोज बैटरीज हैव 1.5 वोल्ट। तो जब ये बैटरी है, इसमें कनेक्शन किया हुआ है नहीं है, तो दोनों एंड को जब चेक करेंगे तो इट विल गिव यू 1.2 वोल्ट बिकॉज इट्स अ चार्जेबल बैटरी। अगर ये नॉर्मल बैटरी होता तो इट विल गिव यू 1.5 वोल्ट। जब इसको किसी चीज में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जब इसका पोटेंशियल चेक करेंगे ना, तो 1.5 अगर है वाला बैटरी है तो 1.5 कभी नहीं दिखेगा। अगर 1.2 वाला है तो 1.2 कभी नहीं दिखेगा, हमेशा कम दिखेगा, हमेशा कम दिखेगा। अब जो कम दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसको? टर्मिनल वोल्टेज। So when the battery, the circuit is open, the potential difference across the two ends of the battery is called electromotive force or EMF. If the circuit is closed, then the potential difference is called terminal voltage. Remember that. अब कम जो आ रहा, क्यों आ रहा है? EMF E is equal to
बड़ा वाला V दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, छोटा वाला V दिस इज द वोल्टेज लॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है? छोटा V इज इक्वल टू आई छोटा r। व्हाट इज छोटा r? छोटा r इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। हर बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है जो नॉर्मली ग्राफाइट का बना हुआ है। अब जो ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड है उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ। वो जो छोटा सा रेजिस्टेंस होता है ना, विच द बैटरी गिव्स यू, द ग्राफाइट रॉड गिव्स यू, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। सो वी हैव V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो रिलेशन है ना, इससे कई सारे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू ई माइनस छोटा v। अब यहां से अगर R दिया रहेगा, सबको I में कन्वर्ट कर लो, तो दिस इज आई आर, ठीक है। दिस इज, इसको ऐसे ही रहने देंगे, एंड दिस इज आई, सॉरी माइनस है, आई छोटा आर, ठीक है। तो आई आर प्लस आई छोटा आर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई बड़ा आर प्लस छोटा आर, राइट। सो कभी कोई बोले व्हाट इज आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई आर प्लस छोटा आर। यू कैन डिराइव वेरियस रिलेशन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वी विल डिराइव वेरियस रिलेशन। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज बुक में दिया हुआ है, अगर आप उसको याद करोगे तो टाइम वेस्ट तो जरूर होगा, कई बार आप भूल भी जाओगे, बट ये समझा रहेगा ना तो ज्यादा दिन याद रहेगा। और समझेंगे कैसे? समझ करते दौरान समझेंगे। ये हमारा बेस है, E इज इक्वल टू बड़ा V प्लस छोटा v। अब वहां से सारा फॉर्मूला को डिराइव करना, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वट एवर विल बी गिवन वी विल डिड्यूस इट। एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, आपको घर जाके एग्जाम्पल नंबर 13 तक अच्छे से देख लेना, और एक्सरसाइज से आपको कहां तक जाना है? 28 नंबर तक आप जा सकते, 28 से आगे नहीं जाना, ठीक है। एक दिन में पूरा करवा देंगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट डे यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ हाउस होल्ड सर्किट खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो अप्लायंस वाला पार्ट है ना, वो अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो अप्लायंस वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग जो है फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे कितना बजे? 7:30 बजे, 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटा में सर्किट खत्म हो जाता है, ठीक है। मगर